udah nacho. Okay, good morning, children. Good morning, ma'am. Good Okay. morning, ma'am. Good morning, everyone. Okay, children, let me know any problem in doing the question answers of lesson 1, theme 1. Have you done? No, ma'am. Yes, ma'am. You have done, but no problem. Huh? Yes, ma'am. Okay, now let us proceed to the theme 2, writing and the city life. Huh? And we have started the introduction of this, but that was not completed, right, children? So we'll continue with Yes, that ma'am. only. We were saying that some Old Testament of the Bible, you know, and according to this, what happened, children? We have told you that they try to correlate the things found in the Bible with the Mesopotamian civilization. Like they have told, tried to match this Shimmer word with the city of Sumer found into the Iraq, right? Actually, Yes, children, what ma'am. happened? जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि जैसे हमने रामायणा में कोई चीज पढ़ी है ना, ठीक है, तो कि हम सब चीजों को कोरिलेट करते हैं कि हाँ श्रीलंका वहां पर है और बहुत सारे एविडेंसेस हैं, उनको हम ये देख करके कोरिलेट करना चाहते हैं कि जो भी ये एपिक या बुक लिखी हुई है वो एविडेंसेस और दोनों चीजें काफी हद तक एक दूसरे से मैच करती हुई हैं. द सेम थिंग वाज देयर, ठीक है. दे ट्राई टू मैच द थिंग्स described into the Bible. Okay, and there was one story about this, about the flood. According to the Bible, flood hit the earth in the ancient times, which was meant to destroy the life on the earth. Okay, then what happened? It was also called the Great Flood or the Biblic Flood बोलते हैं इसे हम. But God wanted to maintain life on the earth. ठीक है, उनको ये था कि even destruction भी हो जाए पर उसके बाद भी अर्थ पर लाइफ रहे. तो what he did, he chose a man named Noah, ठीक है, to ensure that life could continue even after the flood. So Noah built a huge boat, ठीक है, and he took the known species to him of all animals and birds. ठीक है, उनका उसने एक एक पेयर रख लिया so that the things could continue. ठीक है, उनका जो आगे की स्पीशीज हैं वो कंटिन्यू हो पाए. And all those who survived after the flood, ठीक है,
जो भी स्पीशीज उनके पास थी वो तो कंटिन्यूड रही, ठीक है, आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स होते रहे, वो स्पीशीज कंटिन्यूड रही, but rest of the things were destroyed. And only this type of story is found into the Mesopotamian text also, ठीक है। और उसमें बस ये जैसे नोआ था उस पर्सन का नेम, इसमें उसका नाम था ज़्यूसूद्रा और उटनापिस्टेम, ठीक है, इसके नाम से उसको मेंशन किया गया है, बट द स्टोरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, सो फ्रॉम मिड 19th century onwards, जो लोगों का ये एंथुसियाज्म था, जो मैंने बताया था ना कि यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस एंड दे बिलीव इन बाइबल, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम को फंड करा, ठीक है, कि वो इससे रिलेटेड चीजें फाइंड आउट करें। बट बाय 1960 तक आते आते दे अंडरस्टूड कि जो भी स्टोरीज हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, दे वर नॉट लिटरली ट्रू, कि वो सब चीजें एक कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, रियलिटी में नहीं थी वो स्टोरी, बट दे वर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट द चेंजेस इन द हिस्ट्री, ठीक है, कि लोगों को एक लेसन देने के लिए और क्या क्या चेंजेस हिस्ट्री में हो रहे थे, उन सब पास्ट में क्या क्या चेंजेस हुए इंपॉर्टेंट, उन सब चीज को इंडिकेट करने के लिए ये स्टोरीज बनाई गई थी। ओके, स्लोली एंड स्लोली आपकी जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव होती चली गई, जैसे हमने अपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था कि टू नो द एज ऑफ अ सर्टेन थिंग, कि वो कितना ओल्ड है, वी आर यूजिंग कार्बन डेटिंग टेक्निक्स, ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें रिफाइंड होती चली गई। एंड अबाउट दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू फाइंडिंग्स, है ना, we are going to study about this Mesopotamia, ठीक है, clear beta? Now your introduction is over, now let us move to the first heading, the civilization of Mesopotamia. I think this I have already discussed, is known for its city life, voluminous rich literature, its astronomy and mathematics, and the art of writing and city life is also started in Mesopotamia only. Now Mesopotamia and its geography. Okay children, we will see ki what were the geographical conditions of the Mesopotamia. ठीक है, Iraq is a land which has variety of environments, ठीक है, एक तरह का environment नहीं है वहां पर, variety of environments are found there. Let us see the location, है ना, it has taken from the word Mesopotamia, ठीक है, Mesos means क्या होता है, Mesos means yes land, ठीक है, and Potamia means rivers. का तो क्या मतलब हुआ इसका, कि land between two rivers, and these two rivers are your Euphrates and Tigris, ठीक है, I'll show you the map, कि how it is situated. Children, can you make out this? This is river Tigris, right? You can see it on the map, children. Screen पर map दिख रहा है आपके? Yes, ma'am. And both the rivers are there, ठीक है? बेटा ये स्क्रिबलिंग बंद करिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, who is this? देखिए रिवर यूफ्रेट्स मारी के ऊपर बनी हुई है, और इधर इसी के ऊपर थोड़ा सा आपका ये आ गया, ठीक है, दोनों दिख गए हैं बेटा आप लोगों को? नहीं, आर यू एबल टू सी? Yes, ma'am. Is it clear to everyone? Tigris and Euphrates, both the things you can see. जो ये आपका इराक है, इन दोनों रिवर्स के बीच में ही सिचुएटेड है। ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स है, ठीक है, लेट अस सी हाउ इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट. Green undulating plains are found, and these plains gradually rise to tree covered mountain ranges, ठीक है, आपके ये undulating means ऊपर नीचे होते हुए plains हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ये plains
जो है आपका माउंटेन रेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स आर फाउंड हियर, ठीक है। दीज प्लेन्स एक्सपीरियंस एनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। सो व्हाट विल बी देयर मेन ऑक्यूपेशन? क्या होगा उनका मेन ऑक्यूपेशन? व्हेन देयर इज एनफ रेनफॉल इज देयर, तो क्या ऑक्यूपेशन होगा बेटा उनका? एग्रीकल्चर। वेरी गुड, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज देयर मेन ऑक्यूपेशन and it has been seen that agriculture began there around 700 and 600 BCE, ठीक है, before the Mesopotamian civilization also वहां पर ये आपका खेती का काम किया जाता था। In the north there is a stretch of upland which is known as steppe, ठीक है। वहां पर जो लैंड्स हैं उनको स्टेपी, आपका स्टेपी क्या है? आपका ग्रास लैंड है ना। ऑल ऑफ यू नो इट चिल्ड्रन, आपने पढ़ा है है ना। वहां पर वेयर एनिमल हर्डिंग इज बेटर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रासेस ही ग्रो कर सकती हैं। तो वहां पर आप बहुत अच्छे से ट्रीज, फॉरेस्ट, ऐसी चीजें नहीं पाई जाती हैं, ओनली ग्रासेस वर देयर। सो इट इज बेटर फॉर देम टू डू एनिमल रियरिंग, एनिमल हर्डिंग इन केस ऑफ द एग्रीकल्चर। दो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बीइंग डन, और जो लार्ज स्केल पर चीजें आपकी करी जाती है दैट इज योर एनिमल हर्डिंग, एनिमल रियरिंग, ठीक है। बेटा सम डिस्टर्बेंस इज देयर, प्लीज स्टॉप इट। बेटा ये क्या हो जाता है बीच बीच में, आप लोग क्या करने लगते हो? Okay. Now, next is when the season is okay, rain is there, तो उनको कोई खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होती है इन एनिमल्स को। बट आफ्टर द विंटर रेन्स के बाद क्या होता है? जो शीप एंड गोट्स हैं, दे यूज टू फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब्स, जो छोटी छोटी झाड़ियां टाइप की चीजें होती हैं, वो उन पर अपना सरवाइव करते हैं। नाउ इन द ईस्ट डायरेक्शन, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर टिग्रिस, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, ठीक है। जो आपके माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां से ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जो रिवर आपकी टिग्रिस है, चीजों को आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे आपके वुडन लॉग्स होते थे, है ना, तो उनको अगर हम किसी और मीन्स, उस समय तो इतने ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, अब तो आप ट्रक और ये सब चीजें यूज कर लेते हैं। ट्रेन्स आर देयर, है ना, कैरेज ट्रेन्स होती हैं आपकी जो माल लेकर के जाती हैं, ठीक है, गुड्स ट्रेन जो होती हैं, ठीक है। बट उस समय नो सच मीन्स वर देयर, so these rivers were used to transport the things, right? Then in the south it is a desert area, okay. Though your first cities and writing emerged in this desert only, and this could support cities because the river Euphrates and Tigris, है ना। हम सोचते हैं नॉर्मली कि जो डेजर्ट एरिया होती है तो वहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। दिस इज द इमेजिनेशन और माइंड अबाउट द डेजर्ट एरियाज, ठीक है। बट व्हाट इज देयर चिल्ड्रन, कि वहां पर दो दिस इज एन डेजर्ट एरिया, और दोनों ये रिवर्स आपकी उस एरिया के थ्रू फ्लो करती थी, ठीक है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो दे प्रोवाइड वाटर ऑल्सो, ओके, जो कि आपकी नॉर्दर्न माउंटेन से निकलती थी और अपने साथ ये बहुत सारा सिल्ट लेकर के जाती थी। अनालोफिनो जो आप सिल्ट लेकर के आते हैं ऊपर से, है ना, जो इरोडेड मटेरियल नीचे लेकर के आती हैं रिवर्स, वो आपका डिपॉजिट हो जाता था एंड द लैंड बिकम फर्टाइल देयर ऑल्सो। बेटा ये स्क्रिबलिंग कौन करता है रोज? एवरी डे आई एम आस्किंग फॉर द सेम थिंग कि डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। स्टॉप इट चिल्ड्रन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? You are nursery class kids children. And one thing more children, जो भी आपके ये जिस उससे आप ज्वाइन कर रहे हैं ना नंबर से, तो योर नेम शुड बी देयर। ऐसे नहीं किसी ने मैक लिखा हुआ है, किसी ने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, किसी ने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके।
Is it children clear, children? Write your full name, okay, so that I can make out who is that child. What we were discussing कि though it is a desert area and उसके बाद भी यहाँ पर चीजें because of these rivers जो things were fertile. After we'll see how this Euphrates go to this desert. Euphrates entered the desert, or after that it is divided into small channels, and these channels, ठीक है, serve as irrigation canals. ठीक है, जब भी इन channels में आपका ये flooded होती थी, ठीक है, तो यहाँ के जो आपका उसमें silt नीचे बच जाता है when the flood is over, ठीक है, तो वो चीज आपकी fertile हो जाती थी, और ये जो different channels थे, canals, all of you understand, है ना, तो ये वहां पर वाटरिंग का काम करते थे, इरिगेशन कैनाल की तरह काम करते थे ये जो चैनल्स हैं, और इसकी वजह से हम बहुत सारी क्रॉप्स वहां पर ग्रो कर सकते थे, इवन टू द डेजर्ट एरिया, व्हीट, बार्ली, पीस, लेंटिल्स एटसेट्रा। और उस समय पर ये माना जाता था कि जितने भी आसपास के एरियाज हैं, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रोमन एम्पायर इनटू द नेक्स्ट लेसन, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट जो एग्रीकल्चर है वो सदर्न मेसोपोटामिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था, सबसे अच्छा वहां पर प्रोडक्शन होता था, दो रेनफॉल इज नॉट देयर ड्यू टू दैट द एरिया इज अ डेजर्ट एरिया, बट द एरिया अराउंड दीज रिवर्स, है ना, इज फर्टाइल, सो no problem of production, crop production was there due to these two rivers. Okay, not only agriculture in Mesopotamia, sheep and goats were also herd, ठीक है, उनको भी वहां पर डोमेस्टिकेट किया जाता था, एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स, वहां पर ये इनको यूज करा जाता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट, मिल्क, एंड वुल इज ऑल्सो इन अबंडेंस ड्यू टू दिस शीप्स एंड गोट्स, ठीक है, वुल से हमें किससे मिलती है मेनली वुल, आपकी शीप्स एंड गोट्स के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। फिश वॉज ऑल्सो अवेलेबल इन द रिवर वाटर्स, डेट पाम्स, है ना, ये तो आपके एवरीवेयर डेजर्ट में पाए जाते हैं, गेव फ्रूट इन द समर, सो इट वाज क्वाइट प्रॉस्पेरस, जो आपका डेजर्ट एरिया है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था, ऐसा नहीं था कि बीइंग अ डेजर्ट नो क्रॉप प्रोडक्शन वाज देयर। एंड अब हम देखेंगे कि ये जो सिटीज का फॉर्मेशन होता है, टाउन्स एंड सिटीज आपके एमर्ज होते हैं, राइट चिल्ड्रन, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी कैसे आती रहती है, ठीक है, हाउ दे बिकम प्रॉस्पेरस, ओके। Now we'll come to the next heading, the significance of urbanism. बेटा इतना क्लियर हुआ सबको about its geography, its location, कैसे कैसे, Yes, ma'am. okay, Ma'am, I have a question. yes बेटा, Ma'am, if there is sufficient agriculture as well as there is sufficient water, then why it is still called a desert? बेटा not everywhere conditions are like this. I am telling you कि the where these rivers are passing, है ना, जैसे आपके ओएसिस होते हैं ना डेजर्ट में होते हैं ना, तब भी हम उस एरिया को डेजर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, पर ये रिवर्स आपके डेजर्ट के थ्रू पास हो रही थी, तो केवल उनके आसपास के एरियाज में ही, ठीक है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता था, नॉट इन द ऑल डेजर्ट एरिया, ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है बेटा। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, मींस ग्रोइंग ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज। बेटा सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो दीज आर द एरियाज वेयर द more number of people used to live, they just migrate from the villages in search of jobs, okay, and for other better opportunities for their survival. So the population is found more in the cities, and
इट इज दैट इकोनॉमी जो वहां की होती है वो बेटर होती है, एंड आपका जो विलेजेस होते हैं देयर इज ओनली फूड प्रोडक्शन वर्क इज देयर, है ना, वहां पर केवल खेती एग्रीकल्चर का काम मेनली किया जाता है, या कुछ सप्लीमेंट्री आपका करने के लिए वो लोग अपना क्राफ्ट का काम करते हैं, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं, लाइक रोप मेकिंग, बास्केट मेकिंग, समथिंग लाइक दिस एंड दैट, ठीक है. बट इन cities and towns there are but who is this again? I'm really fed up of this child. कौन है? कोई छोटा बच्चा है जिसको लिखना नहीं आता है? every time he is drawing the lines. Who is this? अभी मैंने सारा रिमूव किया है, and again he or she has drawn. And every day I am asking for the same thing. Don't do like this. I'll tell to the coordinator about this. This is the limit. Okay, beta. Yes, what we were talking of कि जो आपका विलेजेस होते हैं वहां पर हम मेनली एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है. बट इन सिटीज मैनी अदर एक्टिविटीज okay. What are the different activities carried into the cities are your food production, trade, manufacturing activities, and different kind of services, like people work as teachers, professionals, and lawyers, like that. Many kind of activities are there which are not found into the villages, okay. And these all things bring the concept of division of labor into the urban life, ठीक है. The division of labor एक मार्क है आपका अर्बन लाइफ का. What is this division of labor here? वैसे तो हम जो division of labor आप normally पढ़ते हैं, what is that? कि females used to do the work of the home and the males used to do the work outside the homes, ठीक है, to earn, to make their earnings, ठीक है. But here what we'll see according to this is the meaning of the division of labor is to fulfill our needs with each other's products and services, ठीक है. Means कोई भी person independently काम नहीं कर सकता. One has to rely on others. They need the services of the others and products to make a thing, ठीक है. कोई भी चीज काम अगर हमको करना है तो एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों के हेल्प की जरूरत पड़ती है, राइट. The division of labor is very much necessary for urban life. The reason is that besides food production, trade, manufacturers, and several types of services also play an important role in urban economies, ठीक है. फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सेवरल टाइप ऑफ सर्विसेज के अलावा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका डिवीजन ऑफ लेबर का, ठीक है. और इवन द जो आपके सिटी पीपल होते हैं दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द अदर सिटी और विलेज पीपल, ठीक है. जो आपके विलेज के लोग हैं वो आपका फूड प्रोडक्शन करते हैं एंड even they supply the things produced in their villages to the city area for their food requirement, ठीक है. सब्जी, गेहूं, चावल, ये सब चीजें गांव से शहरों में आती हैं, ठीक है. तो मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन विलेज, तभी आपके सिटीज एमर्ज हो सकते हैं व्हेन देयर इज सर्पल प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है. तभी आपके टाउन्स, मार्केट, ठीक है, ये चीज एग्जिस्टेंस में आती हैं एंड सिटीज आर फॉर्म. There is continued interaction between the urban people and the village life. इनके बीच में एक interaction होता रहता है. For example,
एक देते हैं हम आपको कि एक कार्वर है जो कि स्टोन सील बना रहा है, ठीक है, ओके, तो ही इज परफेक्ट इन आर्ट ऑफ मेकिंग द सील्स, ठीक है, और वो सारी चीजें अपने आप नहीं इकट्ठा कर सकता है, सो ही नीड हेल्प ऑफ अदर्स ऑल्सो, ठीक है, सील तो वो बना लेगा पर जो उसको बनाने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, स्टोन चाहिए, उन सब के लिए he has to depend on others. Let us see how. For example, the carver of a stone seal needs bronze tools which he himself cannot make, है ना, bronze tools वो अपने आप नहीं बना सकता because he is not perfect into that. He has to depend on others for that. He does not know from where to get colored stones for the seals. Now उसे ये पता है कि seal के लिए वो stone कहाँ से लेकर आ सकता है, ठीक है, and he is specialized in carving not in trading, ठीक है, वो carving में अपने craft में तो specialist है, जैसा उससे कहा जाएगा he will make statue बनाने वाला हो, seals बनाने वाला हो, they are going to do these things, पर उसके लिए tools है ना, raw material आपका जो stone है वो उनको और लोगों से collect करना पड़ेगा या purchase करना पड़ेगा. The bronze tool maker will definitely go out himself to get the metals, tin and copper, ठीक है, उसको भी tin and copper जो है वो परचेज करना पड़ेगा, तब वो आपका टूल्स बनाएगा, ठीक है, ये सब फंक्शंस आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि एक ही पर्सन सारे कामों को कैरी ऑन कर सकता है, राइट चिल्ड्रन, उसके लिए उसको दूसरे लोगों से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ओके, क्लियर हुआ बेटा ये कि किस तरीके Yes, से ma'am. Yes, ma'am. एक पर्सन अपनी चीजों को बनाने के लिए कोई भी काम करते हैं, हम XYZ, आप कपड़ा बनाने का काम ले लो, है ना, तो आपको कॉटन किससे लेना पड़ेगा, फार्मर से लेना पड़ेगा, आपकी जो मशीनरी है वो आपको और कहीं से परचेज करनी पड़ेगी, है ना, तभी आप अपनी, मैं आपको प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल दे रही हूँ, तभी आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, एंड in industries also you will need a help of lot of labor, then only you are able to make out the cloth, ठीक है, क्लॉथ में आपका कुछ कलरिंग का काम है तो कलर्स यू हैव टू परचेज, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, फिनिश देने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है फॉर मेकिंग द फिनिशिंग वर्क, उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, राइट, और वो कहते हैं कि इन सब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, राइट, जो इन सारी सर्विसेज को कोऑर्डिनेट कर सके. अगर हम सोचें कि ये सब चीजें अपने आप ही होती चली जाएंगी तो दैट वाज नॉट पॉसिबल. एक मिनट, हाँ ठीक है, सही, ठीक है, एक हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी इन विच मेनी एक्टिविटीज वाज कोऑर्डिनेटेड इन सच अ सिस्टम सो दैट थिंग्स कुड बी कैरीड ऑन, ठीक है, जैसे वेरियस प्लेसेस से हमको चीजें लेकर आना है सिटी में मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, और जो हम चीजें लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, सेल करने के लिए, तो फॉर दैट वी विल नीड अ स्टोरेज स्पेस ऑल्सो, है ना, स्टोरेज स्पेस की उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी. सपोज कोई आपका स्टोन बेचने वाला पर्सन है, तो ऐसा तो नहीं कि वो हर बार किसी ने डिमांड किया फिर वो स्टोन लेने जाएगा फिर वापस आएगा, नहीं, वो अपने पास बहुत सारी वैरायटी रखेगा स्टोन की कि जिसको जैसा स्टोन चाहिए वो मुझसे खरीद सके, ठीक है, तो फॉर दैट ही नीड अ स्टोरेज स्पेस ऑल्सो. There are deliveries of the grains and other food items from the village to the city, ठीक है, ऐसे ही आपका वहां से चीजें सप्लाई करी जाती थी विलेज से सिटी में, फूड सप्लाई वगैरह करी जाती थी, तो जो आपके जैसे आप होते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो दे नीड थिंग्स टू बी स्टोर्ड विद देम, और जो रिटेलर्स होती हैं उनको इतने ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. द सेम थिंग, जो गांव से चीजें आ रही हैं सेल होने के लिए, उनको भी स्टोर करने के लिए वी नीड अ स्पेस.
Besides, many different activities have to be coordinated. और उसके साथ साथ हमें और बहुत सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था. देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स के लिए ही नहीं, ब्रोंज टूल्स भी आपके अवेलेबल होने चाहिए, है ना, पॉट्स अवेलेबल होने चाहिए फॉर सील कटर्स. ये सब चीजें हमें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए काम करने के लिए. ठीक है, ब्रोंज टूल्स में जैसे आपका जो पॉट मेकिंग हो रही है वो, सील कटर्स चाहिए. ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि देयर आर सम पीपल हु गिव द कमांड्स. ठीक है, ये एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक आदमी लीडर की तरह काम करता है पूरी चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि लोगों को कमांड्स देता है एंड अदर पर्सन्स यूज्ड टू फॉलो और यूज्ड टू ओबे हिज कमांड्स. ठीक है, two types of persons are there. One is giving commands and other those who are following the commands. ठीक है, और इस तरीके से हमारी अर्बन इकोनॉमी वर्क करती है. एंड फॉर अर्बन इकोनॉमी वी नीड टू कीप द written records whatever transaction we are doing, कि हमने किसको कितना पैसा दिया है ना, इन सब के लिए भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. हर चीजें हम रिकॉल नहीं कर सकते कि हमने उस पर्सन को इतना दिया था या उसने कुछ पैसा हमारा उसके पास बचा हुआ है, तो हम ये याद रखें कि इतना पैसा उसके पास है, उसमें से वो पूरा नहीं दे के गया, आधा दे के गया है. तो वी नीड द रिटन रिकॉर्ड्स टू कोऑर्डिनेट दीज थिंग्स. ठीक है, इस तरीके से हमारी अर्बन इकोनॉमी वर्क करती है. Still there is time, let me go to the next heading. जितना हो जाता है कवर इसका. ठीक है, then movements of goods into cities. ठीक है, अब आप जो भी चीजें है ना, हम कह रहे हैं कि ये पर्सन उससे ये चीजें लाएगा, वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करेगा. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स. ओके, एंड व्हाट आर द थिंग्स? देयर आर फ्यू थिंग्स which were found within our city. ठीक है, that is okay, but we are, हमने कहा ना कि जैसे हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, we have to depend on others for many things. ठीक है, तो वो सब चीजें हमें दूसरे लोगों से लेनी होती हैं. For that also we will need the transportation, और जो चीज हमारे पास सरप्लस में है उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी we also need the transportation. Let us first see about the Mesopotamia, कि उनके पास क्या चीजें अवेलेबल थी एंड व्हाट ऑल थिंग्स दे वर टेकिंग फ्रॉम अदर्स. ओके, मेसोपोटामिया वाज क्वाइट रिच इन फूड रिसोर्सेज. जैसे हमने कहा कि एग्रीकल्चर अच्छा हुआ होता है वहां पर, बट देयर वाज लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है, पर वहां पर मिनरल रिसोर्सेज वहां पर नहीं थे अच्छे से. Even stones were not available for making tools, seals and jewels in most part of the south. ठीक है, वहां पर आपका सील्स, टूल्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, है ना, बीड्स वगैरह ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी. इवन जो वुड वहां पर अवेलेबल थी, है ना, द वुड ऑफ योर पॉपुलर ट्री एंड डेट पाम ट्री, है ना, इराक में जो अवेलेबल थी, दैट वाज नॉट of good quality by which we can make carts, cart wheels and boats etc. ठीक है, इसके लिए हमें बहुत ड्यूरेबल अच्छी तरह की वुड चाहिए फॉर बोट्स. दे फ्लो इनटू द वाटर. ठीक है, तो वो वाटर के इन सब चीजों को बियर कर सकें, उसमें अच्छे से मजबूती से काम कर सके, तो उनके अकॉर्डिंग वुड हमको चाहिए. तो दैट वाज नॉट अवेलेबल इनटू द इराक. No metals were available for vessels and tools and ornaments. ठीक है, that is why ancient Mesopotamian people could have exported their agriculture produce and abundant textiles. ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जो चीजें उनके पास ज्यादा थी, लाइक टेक्सटाइल्स, कपड़ा वगैरह, और दूसरा
एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, दे यूज टू export these things to other countries and take what they import from there. जो चीजें उनके यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, like your copper, wood, silver, gold, tin, shell and different type of stones were imported. ठीक है, two things they used to export were your textiles and agricultural products, and many things they import from these countries, other countries, like your copper, wood, silver, gold, tin, shell and different type of stones. Okay, this trade was taking place with Turkey, Iran and across the Gulf. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज से ये अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे. Okay, these regions were very rich in mineral resources, but less scope of agriculture was there in those regions. क्यों वो इन चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए तैयार हो रहे थे? बिकॉज इट वॉज फाउंड कि उनके पास ये मिनरल रिसोर्सेस तो हैं, स्टोन्स, मेटल्स, ये सब चीजें तो हैं, बट दे वर लैकिंग इन व्हाट? एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स. ठीक है, टेक्सटाइल्स भी मेनली आपके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. जूट है, कॉटन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. यस बेटा. Ma'am, I'm not able to see the बेटा what can I do? screen. बेटा what can I do? Let me also know. कितनी बार मैं उसको क्लियर कर चुकी हूँ, है ना? कितनी, and I have used even a rough tone to tell that child कि don't do it, don't do it. It is beyond my control. That is why I am asking कि write your names properly. If you create any disturbance, so that I can make out who is that. तो बेटा आप लोगों के समझने की बात है ना, मैं और इससे ज्यादा कैसे आप लोगों को बोलूं? मैं गुस्से में भी बोल चुकी हूँ, अच्छे से प्यार से भी समझा चुकी हूँ, प्लीज प्लीज करके भी कह दिया कि प्लीज डोंट डू दिस, छोटे किड्स की तरह बिहेव मत करिए. रियली वेरी शेमलेस. मुझे लग रहा है मैं इसीलिए इग्नोर कर रही हूँ कि लेट अस स्टडी. आप मेरा सुनते रहो ध्यान से, है ना, तो आपको क्लियर होता जाएगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस, इफ यू कैन मेक आउट हु इज दिस, यू कैन आस्क हिम पर्सनली. ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग कि जो चीजें उनके यहाँ पर थी, एग्रीकल्चर एंड द टेक्सटाइल्स, दे वर एक्सपोर्टिंग एंड they were importing many things, your wood and stones and metals, right children? Okay, so Mesopotamia exported clothes and agriculture, we can say, products to these countries in exchange of the items that came to them. ठीक है, what are those items we have discussed? क्या थे वो items जो वो import करते थे, उनसे exchange में लेते थे? Textiles and आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज में. यस चिल्ड्रन? Ma'am, metals. Yes, absolutely right. Metals for making tools, vessel and ornaments. Stones for making seals, है ना, and even for tools and jewelry. And wood Yes. for making carts, cart wheels and boats, right? Okay. Okay, regular exchanges were possible only when there was a social organization, है ना. सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हमने सिटी लाइफ में भी डिस्कस किया है ना. तो उन्होंने कहा है कि ये एक्सचेंजेस भी तभी पॉसिबल है if some organization is there which is going to control or who is going to check all these things. Such organization was initiated by Mesopotamia. और मेसोपोटामिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करके चलते. ओके बेटा, नाउ द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. हम समझो एक तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स हैव बीन डिस्कस्ड. ठीक है.